A very good morning, dear students. Today we will start a new chapter of 8th class, that is The Visitors. Chapter 8, The Visitors, and this is written by Marcus Frank Zusak. Okay, and when he was born in 23rd June 1975. Okay, it means he is alive. अभी वो alive है. ठीक है. So before starting this chapter, first I will explain all hard words of this chapter. First is excerpt. Excerpt, it means part, portion, section. Okay. Second hard word is terrifying. Terrifying, it means shocking, bhayanak. Okay. And third is disperse. It means scatter, spread, फैला हुआ, इधर उधर बिखरा हुआ. ठीक है. Fourth is awful. It means terrible. Okay. Fifth hard word is prompting. Prompting, it means enthusiasm. ठीक है. Next, sixth is mingled. It means mixed, uncleared. Okay. Seventh is lodging. It means abode, residence. Next hard word is proceeded. Proceeded, it means begin, retain, आगे बढ़ना. Ninth is green. It means smile. Okay. So all are hard words of chapter 8, The Visitors. Okay. So now students, you all will open your English literature book, page number 83, chapter 8, The Visitors. Okay, what is the meaning of visitor? It means a person who comes to visit but does not belongs with the place, मतलब उस प्लेस से वो बिलोंग्स ना हो बट वो वहाँ पर विजिट करने के लिए आता है, उसको हम विजिटर बोलते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, फर्स्ट आई विल द brief introduction about the Marcus Frank Zusak. Okay, Marcus Frank Zusak is an Australian writer. ये क्या है? Marcus Frank Zusak एक ऑस्ट्रेलियन राइटर है. So he is best known for the book Thief and the Messenger. वो उन्होंने जो बुक लिखी थी Thief and the Messenger, इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए और इस वजह से वो जाने जाते हैं. Two novels for young adults which become international best sellers. उन्होंने 2 novels भी लिखी हुई हैं और जिस वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा बहुत फेमस हुए वो, एंड which become international bestseller. He won the Margaret Edward Award in 2014. अभी 2014 में ही उनको मार्गरेट एडवर्ड जो अवार्ड है वो मिला. ओके, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू यंग अडल्ट लिटरेचर पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड स्टेट. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट दिस स्टोरी. I will give the introduction about this chapter. First, this story is set in Germany during World War II, 1939-1945. You all know about the World War. 2 World War हमारे यहाँ हो चुके हैं. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो अराउंड 1913 में हुआ था और दिस इज़ अ सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइम जब ये स्टोरी हुई थी. ठीक है. Adolf Hitler, the leader of Germany and the Nazi party, believed that Germans were superior to everybody and born to rule over the world. जो अडोल्फ हिटलर है, जो जर्मनी और जो नाजी पार्टी है, नाजी पार्टी आप लोगों को पता है बहुत ही क्रूअल पार्टी को बोलते हैं हम. ठीक है, मतलब क्रूअल पार्टी थी उस टाइम पे. दैट टाइम इट वॉज द वेरी क्रूअल पार्टी, नाजी पार्टी. उसके जो लीडर थे वो कौन थे? अडोल्फ हिटलर थे. और वो ये बिलीव करते थे कि जो जर्मन्स हैं वो सबसे ज़्यादा सुपीरियर हैं और वो हर किसी को ये बताना चाहते थे कि वो इसीलिए उनका जन्म हुआ है ताकि इस पूरे वर्ल्ड पर वो रूलर, इट मीन्स शासन कर सके. रूल ओवर द वर्ल्ड, इट मीन्स पूरे वर्ल्ड पर उन्हीं का शासन हो और कोई भी मतलब उनसे ज़्यादा सुपीरियर ना हो. वो खुद अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते थे. कौन? अडोल्फ हिटलर, जो कि जर्मनी की जो नाजी पार्टी है उसके लीडर थे. ठीक है. Hitler had a special hatred for Jewish people. He considered them less than human and did not think they had a right to freedom or life. जो हिटलर हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेट करते थे. हेटरेड जो ज्विश पीपल हैं, ज्विश जो यहूदी पीपल थे जो जर्मनी में रहते थे उस टाइम पर, उनसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करते थे और उनका ये मानना था
कि ये तो बहुत ही मतलब लेस देन ह्यूमन, इट मीन्स बहुत ही निम्न कोटि के लोग हैं यहूदी लोग जो हैं, और एंड डिड नॉट थिंक दे हैड अ राइट टू फ्रीडम और लाइफ। और वो ये सोचते थे, कौन, जो अडोल्फ हिटलर थे, वो ये सोचते थे कि इन लोगों को कोई भी राइट नहीं है फ्रीडम का, और उनको लाइफ जीने का कोई भी राइट नहीं है, ऐसा उनको सोचते थे हिटलर। और उनको जो ज्यूइश पीपल थे, यहूदी लोग से, उनसे बहुत ज़्यादा हेट करते थे। He arrested all Jewish people in Germany and imprisoned them in concentration camp where they were often tortured and killed. अब जो हिटलर हैं, उन्होंने क्या किया, जितने भी ज्यूइश पीपल हैं जर्मनी में, यहूदी लोग, उन सबको वहाँ पर इम्प्रिजन मतलब कैद कर लिया, और उन सबको एक जो कंसंट्रेशन कैंप जिसे हम बोलते हैं बंदी शिविर, उसमें उन सबको डाल दिया। वो वहाँ पर मतलब जो बहुत बड़ा सारा रूम था, और वहाँ पर कोई विंडो या कोई मतलब डोर वगैरह नहीं था, बहुत ही पॉइजन वाली गैस वहाँ पर स्प्रेड की जाती थी, बहुत ही टॉर्चर किया जाता था, उनको खाना नहीं दिया जाता था, बिकॉज ऑफ हंगर एंड पॉइजनस गैस दे डाइड। और वो लोग जो यहूदी जो ज्यूइश पीपल थे, उनको इस तरीके से जो टॉर्चर किया जा रहा था, तो बहुत सारे लोग वहाँ पर मर भी गए थे, और उनको मतलब बहुत ही गंदे तरीके से टॉर्चर किया गया था। तो इस तरीके से वो वहाँ पर मारे गए थे, किसके थ्रू, जो हिटलर हैं उनके द्वारा। ठीक है, सो नाउ वी विल स्टार्ट दिस स्टोरी। इन दिस स्टोरी देयर आर फ्यू करेक्टर्स। लाइजल जो है मेन करेक्टर हैं, और हैंस जो ह्यूबरमैन है वो उनके फादर हैं, रोज़ा ह्यूबरमैन जो हैं उनकी मदर है, और उनके फ्रेंड्स भी हैं, रूडी हैं उनके, और टॉमी हैं उनके फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरीके से इसके जो मेन करेक्टर है वो लाइजल है। लाइजल जो है वो एक 12 ईयर्स ओल्ड जर्मन गर्ल है। ऑब्वियसली आप लोगों की भी इतनी एज होगी 12 ईयर्स ओल्ड, तो 12 ईयर्स के बच्चे कैसे होते हैं। तो यहाँ पर जो लाइजल है एक्चुअली वो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर और इंटेलिजेंट गर्ल है इस स्टोरी में। शी एंड हर पेरेंट्स, अब जो ये बताया जा रहा है कि लाइजल 12 ईयर्स ओल्ड गर्ल है, एंड शी एंड हर पेरेंट्स हैंस एंड रोज़ा ह्यूबरबर्ग डू नॉट एग्री विथ हिटलर क्रूल पॉलिसीज़। अब जो उसके फादर और मदर हैं वो दोनों ही, और लाइजल, ये सब लोग जो हिटलर की जो क्रूअल जो पॉलिसीज़ थी, जो उनकी नीतियाँ बनाते थे, वो उनसे एग्री नहीं थे, बिल्कुल भी मतलब सहमत नहीं थे। दे आर हाइडिंग ए ज्यूइश मैन कॉल्ड वेक्स वंडनबर्ग इन देयर बेसमेंट एंड आर डिटरमाइंड टू कीप हिम सेफ। अब उन्होंने क्या किया, जो रोज़ा, हैंस और लाइजल हैं वो हिटलर की पॉलिसीज़ को बिल्कुल भी अग्री नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने वहाँ पर एक ज्यूइश जो मैन था जिसका नाम था मैक्स वंडनबर्ग, उनको अपने बेसमेंट में हाइड कर दिया था, और ये डिटरमाइंड किया कि हम उसको सेफ रखेंगे यहाँ पर। दिस इज़ वेरी डेंजरस बिकॉज इफ़ दे आर डिस्कवर्ड, ये बहुत ही ज़्यादा उनके लिए डेंजरस था कि यदि वो यहाँ पर नाजी पार्टी के लोगों द्वारा डिस्कवर्ड खोज लिए जाते हैं, देन व्हाट विल बी डन विद देम, ऑल ऑफ देम विल बी अरेस्टेड एंड पुट टू डेथ। उन सबको अरेस्ट किया जाएगा, और एंड पुट टू डेथ इट मीन्स उनको मृत्यु दंड दिया जाएगा। इन दिस स्क्रिप्ट लाइजल इज प्लेइंग विथ हर फ्रेंड्स व्हेन शी हियर्स सम टेरिफाइंग न्यूज़। स्क्रिप्ट एक तरीके की जो है वो सेक्शन पार्ट ही होता है स्टोरी का। ठीक है, तो यहाँ पर लाइजल जो गर्ल है जो 12 ईयर्स ओल्ड है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ में खेल रही है। व्हेन शी हियर्स सम टेरिफाइंग न्यूज़, जैसे ही वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग, टेरिफाइंग इट मीन्स शॉकिंग न्यूज़ सुनती है, तब क्या होता है। Now we will start this extract from first para. A new ball had been found for Himmel street football. That was the good news, and the somewhat unsettling news was that a division of the NSDAP was heading towards them. अब देखो यहाँ पर स्टोरी में एक तो गुड न्यूज़ है और दूसरी जो है अनसेटलिंग न्यूज़ है। फर्स्ट गुड न्यूज़ क्या है, अ न्यू बॉल हैड बीन फाउंड फॉर हिमल स्ट्रीट फुटबॉल। एक नई बॉल मिली थी हिमल स्ट्रीट फुटबॉल के अंदर, जो जहाँ पर वो खेल रहे थे उनको एक नई बॉल मिली थी। दैट वाज द गुड न्यूज़ फॉर ऑल द
चिल्ड्रन, वो गुड न्यूज़ थी उन सब बच्चों के लिए। एंड दूसरी जो अनसेटलिंग न्यूज़ थी, अनसेटल इट मीन्स मेकिंग देम फील माइल्डली नर्वस और वरीड, और जो दूसरी न्यूज़ थी जो उनको नर्वस करने वाली थी वो क्या थी कि जो NSDAP, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट, इट मीन्स N फॉर नेशनल, S फॉर सोशलिस्ट एंड D फॉर जर्मन वर्कर पार्टी। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी जो थी उसको हम बोलते हैं NSDAP। अब दूसरी अनसेटलिंग न्यूज़ जो थी वो यही थी, उनको नर्वस करने वाली न्यूज़ कि जो नाजी पार्टी के जो लोग हैं वो आगे की तरफ उनकी तरफ आ रहे थे, उसको देखकर वो सारे लोग बहुत ही ज़्यादा नर्वस और वरीड थे। ठीक है, सेकेंड पैरा, दे हैड, यहाँ पर जो डी है उसका मतलब हैड होगा, They had progressed all the way through the town, street by street, house by house, and now they stood a Frau. फ्राउ यहाँ पर जो मीनिंग है उसका मतलब होगा, फ्रॉ इज़ द वर्ड फॉर मिसेस इन जर्मन। जर्मन में जो मिसेस होता है उसके लिए फ्राउ का यूज़ किया जाता है वहाँ पर। सो दे हैड प्रोग्रेस्ड ऑल द वे थ्रू द टाउन। अब वो सारे जो नाजी पार्टी के लोग थे वो सारे आगे बढ़े, टाउन टू टाउन, स्ट्रीट टू स्ट्रीट, हाउस बाय हाउस, एंड नाउ दे स्टूड अ फ्राउ डीलर शॉप। और यहाँ पर डीलर्स शॉप के ऊपर जो एक फ्राउ जो मिसेस थी वहाँ पर वो सब लोग खड़े हो गए, नाजी पार्टी के लोग। टेकिंग अ क्विक ब्रेक बिफोर दे कंटिन्यू विद देयर बिजनेस। अब यहाँ पर कोई बिजनेस यानी कि वो जो भी काम करने यहाँ पर आए थे, क्या काम करने आए थे, वो ऑब्वियसली जेविश लोग जो थे उनको ढूंढ रहे थे ताकि वो उनको कैद कर सके और उनको मार सके। तो वो काम करने के लिए जब यहाँ पर आए तो डीलर्स की शॉप पर वो वहाँ पर खड़े हो गए ब्रेक लेने के लिए ताकि वो अपना काम कंटिन्यू कर सके। From afar, the children was Lizel had only just come out and she had walked over to Rudy and Tommy. What is going on up there? अब बहुत दूर से सारे बच्चों ने उनको देखा, लाइजल ने भी देखा, एंड वो फटाफट से भाग करके किसके पास आई, रूडी और टॉमी के पास में वॉक करके आई और उसने पूछा टॉमी और रूडी से, व्हाट इज़ गोइंग ऑन अप देयर, यहाँ पर क्या चल रहा है। रूडी पुट हिज हैंड इन हिज पॉकेट। रूडी जो है यहाँ पर एक बॉय है उसका फ्रेंड, उसने अपने पॉकेट में हाथ रखा और क्या बोला, द पार्टी दे आर चेकिंग ऑल द हाउस एंड अपार्टमेंट ब्लॉक्स। ये नाजी पार्टी के लोग हैं और ये सब जितने भी हाउस हैं और अपार्टमेंट ब्लॉक्स हैं उनकी चेकिंग कर रहे हैं, कहीं कोई ज्यूइश पीपल तो नहीं है। इंस्टेंट ड्राइनेस सीज द इंटीरियर ऑफ लाइजल माउथ। What is the meaning of instant dryness sees the interior of Lizel's mouth? It means Lizel's mouth turned dry immediately on hearing something that made her feel scared and panicked. जैसे ही उसने ऐसा सुना तो लाइजल बहुत डर गई, पैनिक हो गई, घबरा गई, और जब घबराहट के कारण कई बार ऐसा होता है ना आपका मुंह सूखने लग जाता है, तो इस तरीके से वो घबरा गई। फॉर वॉट, किस लिए आए हैं यहाँ पर ये लोग, क्यों डर रही थी वो, क्योंकि उन्होंने जो मैक्स बेडेनवर्थ था उसको अपने जो बेसमेंट था वहाँ पर हाइड किया हुआ था और वो एक यहूदी ही था, ज्यूइश पीपल ही था, इसलिए वो घबराई हुई थी। डोंट यू नो एनीथिंग टेल हर टॉमी। और टॉमी ने उसको बोला कि क्या तुम्हें नहीं पता कि क्यों आए यहाँ पर। टॉमी वॉज परप्लेक्स्ड। अब जो टॉमी था वो भी कंफ्यूज था कि क्यों आए हैं यहाँ पर। वेल आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता एक्चुअली ये यहाँ पर क्यों आए हैं। येस you are hopeless, the pair of you, they need more air raid shelter। अब यहाँ पर रूडी जो है वो क्या बोल रहा है कि तुम तो दोनों ही पेयर ऑफ यू यानी जो टॉमी है और जो लाइजल है उनको बोलता है कि तुम तो दोनों के दोनों ही होपलेस हो, तुम दोनों को कुछ भी नहीं मालूम है। एयर रेड शेल्टर इट मीन्स अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स और बेसमेंट दैट आर डिजाइंड और प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम एयर रेड्स ड्रॉपिंग ऑफ बॉम्ब्स बाय एयरक्राफ्ट ऑन टू टारगेट ऑन द ग्राउंड। तो वो बोलता है कि तुमको तो कुछ भी नहीं मालूम है कि एक्चुअली क्यों आए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम यहीं तक करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस